Hello, Bache. How are you? I hope you all are doing well and preparing well for your exams, right? So, on your queries and due to your support, I have started with the most weightage carrying unit, very important unit genetics, and the chapter from that unit is molecular basis of inheritance. This is the most important chapter. Clear? अब चाहे नीट की बात करो वेदर इट इज़ अ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये क्लियर बच्चे सो लेट्स गेट स्टार्टेड ओके फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हमने करना क्या है सबसे पहले इस चैप्टर में हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे देन वी विल शिफ्ट टू आरएनए देन आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ओके नाउ द थिंग इज first part is DNA and we know that there are two types of genetic material. Which are these genetic materials? It's DNA and RNA. DNA is deoxyribose nucleic acid, RNA is ribose nucleic acid. बायोमोलिक्यूल्स में +1 में हम लोग ये चीज़ें पढ़ के आए हैं ओके नहीं भी पढ़ी तो सम ऑफ द पार्ट विल बी डिस्कस्ड हियर नो प्रॉब्लम एट ऑल क्लियर NCERT step by step we will follow okay so very first topic is DNA स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे बट डीएनए बना कैसे ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे ओके अब बच्चे एक डेटा है विच इज़ टू बी लर्नड कर लो क्राम कर लो आपको करना पड़ेगा ठीक है जब हम डीएनए स्टार्ट करते हैं तो वहीं पे एक डेटा गिवन है एंड व्हाट इज दैट डेटा इज अबाउट हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स और we can say base pairs are there ठीक है what is actually the length of the genetic material of these organisms तो इनकी बात करते हैं पहले very first organism is bacteriophage very first organism is bacteriophage okay and what is bacteriophage बैक्टीरिया है या वायरस है It is actually bacteriophages. Phages are the viruses that infects the bacteria. कौन सा bacteriophage है? This is psi into 174 bacteriophage. अगर हम देखें, this is psi into 174 is the name of this bacteriophage. And इसमें कितना base pairs है? It is 5, 3, 8, 6 nucleotides are there. How many nucleotides? 5, 3, 8, 6 nucleotides. Right? अब इसका DNA कैसा होगा? It is single-stranded DNA. What type of DNA is there? Single-stranded DNA. Clear? Second example that we have that is the lambda bacteriophage. Second भी हमारे पास है. We have a lambda bacteriophage. Lambda bacteriophage. लैम्डा बैक्टीरियोफाज में जो अपने पास जीनोम कंटेंट रहेगा दैट इज 48502 48502 और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बेस पेयर्स इज दैट क्लियर बेस पेयर्स अब आपको न्यूक्लियोटाइड्स और बेस पेयर्स में डिफरेंस अभी क्लियर हो जाएगा आफ्टर दिस complete class okay so this is actually what this is a double stranded DNA this is double stranded DNA clear if we talk about E. coli is what E. coli is the bacteria सबको पता है E. coli is the bacteria तो E. coli में कितना है it is 4.6 into 10 to the power 6 base pairs 4.6 10 to the power 6 base pairs. Next example is about human beings. And what is the length of the human DNA? What is the length of human DNA? कितनी length है human DNA की? It is 3.3 into 10 to the power 9 base pairs. 3.3 into 10 to the power 9 base pairs. अब देखो ध्यान से if we talk about human DNA this is actually the which content
haploid content. Haploid content means out of 46 chromosomes, we are just talking about 23 chromosomes. उन 23 chromosomes की बात हो रही है because we know that there is exact a copy of same chromosome in our cell, right? तो अगर आती है बात डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ डीएनए की कि तो कितना होगा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डीएनए, इट विल बी जस्ट डबल ऑफ इट. क्लियर? सो दिस डेटा इज टू बी लर्न एज इट इज. रोज रोज पढ़ो और लर्न हो जाएगा, राइट? नाउ द थिंग इज दिस इज द न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट इज इट? इट इज बेस पेयर्स. क्लियर? यहाँ पे जो ये डिफरेंस है, ये सारी चीजें अभी क्लियर होंगी when we will start with the structure of DNA. Clear? Now I'm erasing this part. Okay. So let's start with structure of DNA. This is the structure of DNA. And you know what is DNA? DNA is deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. Clear? Now deoxyribonucleic acid or DNA, this is actually a polynucleotide. ये DNA है क्या? This is a polynucleotide. Polynucleotide. Is it clear? Polynucleotide का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सिंगल चेन. ठीक है? इस एक चेन में या इस धागे में एक धागा बना हुआ है, इसमें क्या है, बहुत सारे हमने बीड्स डाले हैं. अब ये एक धागा जो है, जो ये पूरा अपने पास नेकलेस बन के रेडी हुआ है, दिस इज फ्रॉम दीज बीड्स एंड द सिंगल बीड इज व्हाट? इट इज अ मोनोमर. द सिंगल बीड इज अ मोनोमर. और अगर ये सारे बीड्स की बात करते हैं तो ये सारे बीड्स मिलके क्या बनाते हैं? दे आर फॉर्मिंग अ पॉलीमर. सो व्हाट हैज बीन फॉर्म्ड? अ पॉलीमर हैज बीन फॉर्म्ड, राइट? अब ये जो बच्चे न्यूक्लियोटाइड है, दिस न्यूक्लियोटाइड इज एक्चुअली द मोनोमर न्यूक्लियोटाइड. It is actually the monomer. And when all the nucleotides are added, ठीक है, what they form? They form the polynucleotide, which is the polymer. Polynucleotides. That means we can say that a single nucleotide is a basic unit of DNA, right? So now let us study what does this nucleotide means. ये न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनता कैसे है? क्लियर? सो हियर वी हैव अ न्यूक्लियोटाइड, राइट? न्यूक्लियोटाइड में ये चीज याद रखना, न्यूक्लियोटाइड में जो टी है, इस पे ज्यादा फोकस देना. टी रेफर्स टू 3. दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड में ये टी इज देयर. टी रेफर्स टू 3. And this 3 means that this nucleotide is made up of 3 things. ठीक है? This nucleotide is made up of 3 things. अब वो 3 चीजें हमने पढ़नी है. वो 3 चीजें कौन सी है? Very first is a pentose sugar. Very first is pentose sugar. Second one is a nitrogenous base. This is a nitrogenous base. Okay. And last is the phosphate group. This is a phosphate is added. तो ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं? They form a nucleotide. Okay. Now let's talk about the pentose sugar. ये देखो, ये अपने पास एक स्ट्रक्चर आ गया. दिस इज O. क्लियर?
दिस इज O ऑक्सीजन। और अगर हम इसकी रिंग्स कंप्लीट करते हैं, here we have H, here we have H, here we have OH, and this is CH2, OH and H। अब बात करें, so this is 1 dash, this is 2 dash, this is 3 dash, this is 4 dash and this is 5 dash। ये 5 dash क्या है? कार्बन है। This position is occupied by carbon। Let me show you here। यहाँ पे सबके क्या होगा? कार्बन होगा। This is carbon, this is carbon, this is carbon, this is carbon and this is also carbon। So 1 dash carbon, 2nd dash carbon, 3rd dash, 4 dash and 5 dash carbon are there, right? Now पेंटोज शुगर का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब डीएनए और आरएनए में पेंटोज शुगर में डिफरेंस कहाँ है? देयर इज ओनली वन डिफरेंस एट 2 प्राइम एंड। अगर हम आरएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, आरएनए में 2 प्राइम पे देयर इज OH, क्लियर? बट सिंस द नेम इज डीऑक्सीराइबो, डीऑक्सी मीन्स दैट at the 2 prime end, 2 prime पे oxygen is not there। That's why this is called as deoxy। Is this clear? Pentose is done। Now nitrogenous bases। अब बच्चे nitrogenous bases अपने पास आते हैं 2 types के। Though this part has been done in biomolecules of +1 class, nitrogenous bases are of 2 types। One are purines and second is pyrimidines। pyrimidines, purines and pyrimidines। अब जो purines होते हैं, they are double ring structures। purines are double ringed, they have a double ring in them, ठीक है। और अगर हम pyrimidines की बात करते हैं, pyrimidines का सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, दैट इज अ सिंगल रिंग। अब इसको लर्न करने के लिए याद रखना कि प्यूरीन्स बोलने में छोटा है बट स्ट्रक्चर इज बिग वन, एंड pyrimidines बोलने में बड़ा है बट स्ट्रक्चर इज स्मॉल वन। ऑपोजिट्स, एंटोनिम्स लेके चलेंगे। स्ट्रक्चर इज बिग, नेम इज स्मॉल, clear? Name is small, structure is big। I'll show you the structure from a book। अब और क्या है? डबल रिंग इज देयर। यहाँ पे हमारे पास सिंगल रिंग आती है। कौन कौन से प्यूरीन्स हैं अपने पास? कौन कौन से प्यूरीन्स हैं? मेजरली जो प्यूरीन्स अपने पास आते हैं, दे आर एडिनिन एंड सेकेंड इज गुआनिन। एडिनिन एंड गुआनिन आर द प्यूरीन्स। और pyrimidines अपने पास आते हैं। pyrimidines में देखो Y इज देयर, यहाँ से याद रखना Y है। तो pyrimidines में भी इनके नेम्स में भी Y आ रहा है। वन इज साइटोसिन, वन इज साइटोसिन, सेकेंड वी हैव थाइमीन, ठीक है। और थर्ड जो अपने पास आता है यूरासिल। यूरासिल इज अ पार्ट ऑफ RNA। It is found in RNA। So see here, cytosine में Y is there, thymine में भी अपने पास Y आ रहा है, clear? So we have purines and pyrimidines। अब बात आती है कि नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस मीन्स कि इनके स्ट्रक्चर में क्या होगा? दे हैव अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है इनका, दे हैव अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, रिंग टाइप स्ट्रक्चर इज देयर। सी अब इनके स्ट्रक्चर में हमें कहीं पे क्या मिलेगा? समवेयर वी विल फाइंड नाइट्रोजन, ठीक है, और कहीं पे हमें क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा। दिस टाइप ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। सो दैट्स व्हाई नाइट्रोजन होने की वजह से दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजनस बेस, राइट? अब देखो बच्चे, प्यूरीन्स में हमें देखना है कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, pyrimidines में देखना है नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। सो लेट मी शो यू फ्रॉम दिस पार्ट। Just see here, see here,
Let us start here first of all. This is a purine. Adenine and guanine are the purines. ओके अब एडिनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स हैं. यहाँ पे नाइट्रोजन खुद देखो कहाँ कहाँ पे मिलेगा. वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. इस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सी हमें नाइट्रोजन कहाँ कहाँ मिल रहा है. This is at position number 1. Then we have got it at 3rd position. Then we have got it at 7th position and 9th position. ये इसका साइड ग्रुप है, इसको मत देखना. क्लियर. सो प्यूरिन्स में हमें नाइट्रोजन कहाँ कहाँ मिलता है. 1 3 7 and 9 पोजीशन पे. Right? Adenine and guanine are the purines. If we talk about pyrimidines, cytosine, thymine and uracil are the pyrimidines. यहाँ पे देखो अपने को कहाँ मिलेगा. This is position number 1 2 3. आगे कहीं नाइट्रोजन है नहीं है. तो pyrimidines में हमें नाइट्रोजन कहाँ मिलता है. 1 and 3rd position. Is that clear? तो if we write here the difference, purines में we are getting nitrogen at 1, 3, 7 and 9 position और pyrimidines में हमें मिलेगा 1 and 3 position पे क्या मिलेगा. नाइट्रोजन मिलेगा. Is that clear? Clear बच्चे. ओके अब इसकी ज़रूरत क्या है. Because when we are forming the nucleotide तो प्यूरिन्स और pyrimidines अलग अलग नाइट्रोजन से बाइंड करते हैं. ओके वी विल सी टू इट. थर्ड पार्ट इज फॉस्फेट. अब फॉस्फेट क्या है. फॉस्फेट इज एक्चुअली अ फॉस्फोरिक एसिड. व्हाट इज द फॉस्फेट. इट इज फॉस्फोरिक एसिड. दिस फॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4. तो दिस इज P डबल बॉन्ड O. दिस इज OH OH and OH. क्लियर. अब ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं. न्यूक्लियोटाइड. और ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड क्या करता है. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके इट फॉर्म्स DNA. इज दैट क्लियर. अब इसमें एक चीज और आती है. आई एम राइटिंग हियर वन मोर टर्म दैट इज न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड. This nucleoside, what is this nucleoside? Nucleoside आप आगे पढ़ोगे चैप्टर में. We will study about DNA replication. ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपको ये टर्म्स भी मिलेंगे. ओके बच्चे. न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फ़र्क होता है. न्यूक्लियोसाइड जस्ट कंप्राइजेज ऑफ नाइट्रोजनस बेस. नाइट्रोजीनस base and second is S refers to sugar. S refers to sugar and this sugar is what. Pentose sugar. जब ये दोनों होते हैं then it is called nucleoside. अब अगर हम इस न्यूक्लियोसाइड में क्या ऐड करेंगे. फॉस्फेट ऐड कर देंगे. when a phosphate is added to a nucleoside what will be formed. Then a nucleotide is formed. Is that clear? Right? This much part is clear. Now shift to next part. Okay? चलो. I'm erasing this part. अब हम बनाना सीखेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन कैसे करता है and how it helps in formation of DNA. And this is very important. चलो. नाउ वेरी फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा था इसमें न्यूक्लियोटाइड में दैट वाज द पेंटोज शुगर. सो लेट्स ड्रॉ हियर अ पेंटोज शुगर. यहाँ पे मैंने क्या बनाया. एक पेंटोज शुगर से स्टार्ट किया. दिस इज अ पेंटोज शुगर की एक बैकबोन हो गई अपने पास. सो इट वाज अगेन दिस इज OH. This is H
हेयर ऑल्सो वी हैव H, फर्स्ट प्राइम, सेकेंड, थर्ड में अपने पास OH आ जाता है. देन वी हैव CH2OH एंड H, and next we have here oxygen is present. Is that clear? Right? ये हमारे पास पेंटोज शुगर आ गया. Now the point is, नेक्स्ट अपने पास आता है नाइट्रोजनस बेस. अब नाइट्रोजनस बेस कहाँ अटैच होगा? ये बच्चे सी हेयर, दिस इज व्हाट, दिस इज कार्बन. यहाँ पे अपने पास 1 प्राइम है, 1 प्राइम पे कार्बन पड़ा हुआ है. क्लियर? 1 प्राइम पे देयर इज द कार्बन एटम. अब इस कार्बन के साथ यहाँ 1 प्राइम पे क्या अपने पास आएगा? नाइट्रोजनस बेस आके अटैच होगा. एनी नाइट्रोजनस बेस कैन अटैच टू दिस कार्बन. और जो बॉन्ड बनेगा, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बॉन्ड्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो बी केयरफुल. कौन सी साइड पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, बी वेरी वेरी अटेंटिव. इन CBSE बोर्ड एग्जाम डेफिनेटली अ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस पार्ट. ओके, सो द नाइट्रोजनस बेस इज देयर, 1 प्राइम पे कार्बन है अपने पास. अब कौन सा बॉन्ड बन रहा है? दिस इज N-glycosidic bond. N-glycosidic bond has been formed. अब ये N-glycosidic bond को हम और क्या बोल सकते हैं? This can also be called as CNC bond. CNC bond भी बोलते हैं. क्लियर? अब नाइट्रोजनस बेसेस हमने 2 तरह के पढ़े हैं. वी हैव डन प्यूरीन्स एंड वी हैव डन पिरिमिडीन्स. अब देखो, अगर तो प्यूरीन है, इफ इट इज अ प्यूरीन, तो बॉन्ड कहाँ बनेगा? प्यूरीन में बच्चे बॉन्ड कहाँ बनता है? 1' शुगर का और 9 वाला नाइट्रोजन, बिकॉज प्यूरीन्स में 1, 3, 7 एंड 9 पोजिशन पे अपने पास नाइट्रोजन is present, right? So 1-9 के साथ बनेगा प्यूरीन में बॉन्ड. and if it is a pyrimidine, तो अपने पास बॉन्ड कहाँ बनेगा? it is 1-1. 1 means this is the one of nitrogen. pyrimidine का 1 वाला नाइट्रोजन है. क्लियर? एंड दिस इज 1' कार्बन. इज दैट क्लियर? ये हमारे बॉन्ड्स हैं. आई विल शो यू, लेट मी शो यू फ्रॉम अ बुक ऑल्सो. सी हियर, just look at this part. This is a nucleoside has been shown to you. ये आपको न्यूक्लियोसाइड दिखाया गया है. ठीक है, अब इसमें क्या है? दिस इज डबल रिंग स्ट्रक्चर. डबल रिंग कौन सा होता है? प्यूरीन होता है. देखो ये प्यूरीन में 9 वाला नाइट्रोजन 1 वाले कार्बन के साथ अटैच है. इज दैट क्लियर? राइट? एंड हियर वी हैव, अगर ये pyrimidine है, pyrimidine में 1 वाला नाइट्रोजन इज अटैच टू मेकिंग अ लिंकेज विद 1' कार्बन. राइट? तो ये हमारा क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड हमने बना लिया. न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म्ड, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस इज डन. अब हमें क्या बनाना है? वी आर गोइंग टू फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड में हमें तीसरा क्या चाहिए? वी नीड अ फॉस्फेट. राइट? तो अब फॉस्फेट की जरूरत है. तो फॉस्फेट हम कहाँ से लाते हैं? बाय एडिंग H3PO4. सी हियर, अब हमने क्या किया? हमने यहाँ पे फॉस्फेट ऐड कर दिया. दिस इज द फॉस्फेट. इट इज P double bond O. This is OH. This is OH and this is also OH. ठीक है, कौन से एंड पे आया फॉस्फेट? अगर हम इसको नंबरिंग दे, दिस इज 1 प्राइम, 2 प्राइम, दिस इज 3, दिस इज 4 कार्बन एंड दिस इज 5th कार्बन. मतलब फॉस्फेट कहाँ होता है? 5' एंड पे फॉस्फेट. हम पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं DNA में 5' एंड पे फॉस्फेट होता है, 3' पे देयर इज OH. तो एक्चुअली इन दिस फॉर्म, इसी फॉर्म में बनता है अपना न्यूक्लियोटाइड. दैट्स व्हाई 5' पे फॉस्फेट आ जाता है. अभी हमने क्या पढ़ा? 5' पे फॉस्फेट है बट अभी कोई बॉन्ड नहीं बना. क्लियर? सी हियर, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड? 5' पे फॉस्फेट है. अब यहाँ का जो OH, दिस OH एंड this OH,
हमने पता है कि हमें अगर जब भी कभी कोई बॉन्ड बनाना है तो हम क्या करते हैं, देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पानी बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से क्या कर दिया, वाटर को रिमूव करा दिया। सो दिस इज H2O। डन। वाटर हैज बीन रिमूव, पानी निकल गया, क्या बचा, just see here, this is CH2O यहाँ पे, right, and here we have this part. Clear? Here, so this bond is called as ester bond. This is called as ester bond. यहाँ पे OH था, CH2 के साथ OH was there, and here we had OH. Clear? तो H2O बाहर आ गया and this bond is formed. जो ये bond बना है अपने पास, this bond is called as ester bond, and this complete structure is actually a nucleotide. ये बच्चे हमारा nucleotide ready हो गया. Nucleotide is ready. राइट। अब आती है बात डाइन्यूक्लियोटाइड। दिस इज अ मोनोन्यूक्लियोटाइड, एक मोनोमर बना है। अब हम एक और न्यूक्लियोटाइड अगर ऐड करते हैं तो वो कहाँ ऐड होगा और कैसे ऐड होगा, राइट। नाउ सी हियर, नेक्स्ट हम एक और क्या लेते हैं, शुगर लेते हैं, पेंटोज शुगर। हियर ओनली वी आर टेकिंग अ पेंटोज शुगर ऑन दिस साइड। Again, here is H, this is H, this is 3 prime OH, here we have CH2OH and H। ठीक है, पोलैरिटी देते हैं 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। इसके साथ भी कोई ना कोई बेस अटैच होगा। सो 1 प्राइम पे वी आर एडिंग द बेस, यहाँ पे भी चलो कोई बेस, नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन में से कुछ भी ऐड हो जाएगा। यूरेसिल ऐड नहीं करेंगे, व्हाई, बिकॉज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए में यूरेसिल ऐड नहीं होगा, यूरेसिल इज अटैच्ड टू आरएनए ओनली। क्लियर। नाउ सी हियर, अब अगर अपने पास एक न्यूक्लियोसाइड ऐड हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3-OH इज ऑलवेज फ्री, 3-OH फ्री पड़ा है। नीचे अपने पास क्या है, फॉस्फेट है, फॉस्फोरिक एसिड वॉज देयर। अब क्या है, अब इसका OH, दिस OH एंड दिस OH ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। हाउ विल दे मेक द बॉन्ड, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से भी वही सेम फॉलो होगा। ये लो, वाटर हैज बीन रिमूव्ड, पानी का रिमूवल होगा, एंड फाइनली व्हाट विल बी फॉर्म्ड, एक और बॉन्ड बन के सामने आ जाएगा, दैट इज P के साथ एक इधर O। अब अपने पास आ गया P के साथ दिस। नाउ सी हियर, अब देखो ये भी एक क्या है, दिस इज ऑल्सो, दिस बॉन्ड इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज एन एस्टर बॉन्ड, दिस इज एन एस्टर बॉन्ड। ये अकेला एस्टर बॉन्ड, दिस इज एस्टर बॉन्ड। अब ये जब दोनों बॉन्ड्स को हम मिलाएंगे तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे बन रहा है, 3' से स्टार्ट हुआ, 5' तक गया। सो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इज दैट क्लियर। अब इसके ऊपर भी क्या होगा, 5' एंड 3,
यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड अ फॉस्फोरिक एसिड. अगेन वी हैव P double bond O, this is OH, this is OH and this is OH था, दोबारा बना के बता रही हूँ. OH was there, इसका OH वाटर का रिमूवल होगा, H2O is removed. This is, there is the removal of water molecule and finally अपने पास क्या बन गया, a complete, this is actually a dinucleotide. What is it? Because how many nucleotides are there? One nucleotide and second nucleotide अपने पास बना है. So what is it? It is dinucleotide. Clear हुई ये चीज? ठीक है बच्चे. अब see here, अब इस पे मेजर क्वेश्चन आता है आपके पेपर में. क्या पूछेंगे? They will ask the bonds. बॉन्ड कौन सा पूछेंगे? फर्स्ट बॉन्ड पूछेंगे यहाँ पे. दे कैन आस्क यू, इसको एक्स कर देंगे, इस वाले एरिया को दे कैन डू वाई. ठीक है, यहाँ पे वो जेड कर सकते हैं. नाउ टेल द 3 बॉन्ड्स. ठीक है, तो अब आपने क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि 2 न्यूक्लियोटाइड है. 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. कार्बन दैट इज पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और जो फ्री फॉस्फेट है, फ्री फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज अ सिंगल. सो दिस इज व्हाट, दिस इज एस्टर बॉन्ड. व्हाट इज इट? एस्टर बॉन्ड. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. डाई एस्टर नहीं है, दिस इज एन एस्टर बॉन्ड. दिस इज एन एस्टर bond. So do take care of this thing. This is actually phosphoester bond. Clear everyone? ठीक है. So here we have completed a nucleotide. Structure of a nucleotide. अब ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते जाएंगे तो क्या बनाएंगे? बैक्टीरियोफेज 5 जो वायरस था उसमें हमने क्या पढ़ा था? It has how many nucleotides? How many? 5, 3, 8, 6 न्यूक्लियोटाइड्स है. मतलब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें. ठीक है. बट इफ वी टॉक अबाउट बेस पेयर्स, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मीन्स कि वो साथ में चलेगा डीएनए ऑन दिस साइड. मतलब एक साइड ऐसे चल रही है लाइक दिस, दैट दिस वे. ये इस तरह से बन गया अपना. दिस इज द स्ट्रक्चर लाइक दिस. यहाँ हमारा नाइट्रोजनस बेस आ रहा है. दिस इज अ नाइट्रोजनस बेस ऑन दिस साइड. दिस इज अ पेंटोज शुगर फॉस्फेट. पेंटोज शुगर फॉस्फेट की बैकबोन ऐसे है, ये ऐसे जा रहा है. ठीक है. अब दूसरी साइड पे अपने पास क्या होगा? इफ वी टॉक अबाउट डीएनए, अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करें तो वो ऐसे चलेगा, एंटी पैरेलल चलेगा. राइट. ये डिस्कस करेंगे हम अच्छे से. आई थिंक इन द नेक्स्ट क्लास दिस वुड बी डन. मोर ओवर, नाउ लेट अस स्टडी फ्यू क्वेश्चंस. प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की एंड दीज क्वेश्चंस विल बी हेयर. अब आप लोग मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू 6 न्यूक्लियोटाइड्स. अब मैं बोल रही हूँ कि एक डीएनए की लेंथ है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसकी है 6 न्यूक्लियोटाइड्स की लेंथ. ओके. सो नाउ यू पीपल टेल मी कि इसके अंदर हाउ मैनी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड विल बी देयर. फॉस्फोडाइएस्टर bond will be there and how many glycosidic bond will be there. 6 न्यूक्लियोटाइड्स का डीएनए है. कौन सा डीएनए है? लेट मी टेल यू. दिस इज अ लीनियर डीएनए. लीनियर डीएनए है. हाउ मेनी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड विल बी देयर एंड हाउ मेनी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विल बी देयर. लेट्स कैलकुलेट. अब मैंने क्या बनाया? एक लीनियर डीएनए बनाती हूँ. 1 न्यूक्लियोटाइड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. बीच में बॉन्ड्स लगा दे. दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 बॉन्ड्स. अब यहाँ पे ध्यान देना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ है? 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का बॉन्ड इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड.
ओके, तो हाउ मेनी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, दैट इज 5। और अगर हम देखें तो वी कैन जनरेट इट इज n-1, एक माइनस करके चलना है हमने। 6 न्यूक्लियोटाइड्स, 1 2 3 4 5 bonds, and how many glycosidic bonds are there? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में हमें पता है शुगर के साथ हमेशा नाइट्रोजनस बेसिस देयर, तो इसके साथ n होगा, इसके साथ भी n होगा, इसके साथ भी n होगा, इसके साथ भी n होगा, इसमें भी n होगा, इसमें भी एक नाइट्रोजनस बेस होगा। तो दैट मीन्स हाउ मेनी 6 glycosidic bonds will be there, that is formula is n। ठीक है, now in case of another question is कि 6 nucleotides ही हैं, there are 6 nucleotides and this time the DNA is circular DNA, this time the DNA is circular DNA। अब ये circular DNA में again just tell me how many phosphodiester bonds are there, phosphodiester bonds, and second one is glycosidic bond. How many glycosidic bonds are there? So if we talk about circular DNA, let's make a circular DNA. This is 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक और बना लिया, this is 6 nucleotides, right? Just wait, this is 1 2 3 4 5 and 6, यहाँ पे बन गया। ओके, सो नाउ 1 2 3 4 5 6 bonds बन गए, 6 bonds। तो दैट मीन्स अगर सर्कुलर डीएनए है तो हमारा फॉर्मूला फॉर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विल बी n। कितने बॉन्ड्स हैं, 6 ही हैं। ग्लाइकोसिडिक भी कितने होंगे, बिकॉज जितने शुगर्स हैं उतने ही अपने पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं। सो हियर द फॉर्मूला इज n, यहाँ पे भी अपने पास हो जाएगा n। इज दैट क्लियर? सो टिल दिस मच you have to practice properly. Structure of DNA, detailed structure of DNA and how it is stabilized, the questions related to that we will cover in the next class. Okay, all the best. Take care.